Very good morning, students. I hope you all are doing good in your studies and also revised your previous chapters. Today, we are going to start our chapter 6, which is graphics, links, and tables in HTML. So, let's learn about all these topics in this chapter. The name of your chapter is Graphics, Links, and Tables in HTML, and the topics we will discuss are images in web pages, using images, adding horizontal rule, links, tables, creating a table, and spanning cells. Now, HTML एक text based approach होती है to describe that how content contained within an HTML file is structured. HTML एक text based approach होती है जो ये बताती है, describe करती है कि कैसे जो हमारा content है वो contain होता है within an HTML file और वो कैसे structured होता है. This markup tells a web browser how to display text. ये जो markup है ये बताता है browser को कि कैसे टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है, इमेजेस को एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मल्टीमीडिया को ऑन अ वेब पेज. नाउ एचटीएमएल एक फॉर्मल रिकमेंडेशन होती है बाय V3C एंड जनरली adhered बाय all major web browsers including mobile and desktop browser. In this chapter we shall study about is adding graphics, links and tables in HTML. Now images in web pages. वेब पेजेस के अंदर जो इमेजेस होती हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे इन दिस टॉपिक. यू कैन स्कैन फोटोग्राफ्स. आप फोटोग्राफ्स को, लोगोस को या फिर ड्राइंग्स को स्कैनर की मदद से स्कैन कर पाते हो और फिर उनको यूज कर सकते हो स्कैन्ड इमेजेस को ऑन योर वेब पेजेस. नाउ a computer stores collection of ready-made images are available. These collections include cartoon, drawing, photographs or computer-generated art. Before buying, make sure that ये जो images है they are in a format that web browser can display such as GIF or JPG. Now you can create your own image that best suits your web pages with the help of an image editing program. आप किसी भी इमेज एडिटिंग प्रोग्राम से अपने लिए खुद की एक इमेज डिजाइन कर सकते हो जो आपके वेब पेज को सूट करती हो. Adobe Photoshop, GIMP and PaintShop Pro are popular image editing programs. Moving forward to storing images and web pages, you should store all your web pages and images in one folder. आपको अपनी सारी images और web pages को एक फोल्डर में स्टोर करना चाहिए इन योर कंप्यूटर. एंड इफ द फोल्डर कंटेन्स मेनी फाइल्स, अगर वो फोल्डर बहुत सारी फाइल्स कंटेन करता है, यू कैन स्टोर योर इमेजेस इन सब फोल्डर. आप अपनी इमेजेस को सब फोल्डर में भी स्टोर कर सकते हो. इफ एन इमेज you want to add to a web page is stored in the same folder as of the web page, you can specify just the name of the image. आप सिर्फ अपनी इमेज का नेम स्पेसिफाई कर सकते हो जैसे balloon.jpg etc. If an image is stored in a subfolder, अगर आपकी जो images है वो subfolder के अंदर stored है, you must specify the name of the image. For example, images/balloon.jpg. Using images. Now, images are essential for making any web browser attractive and effective. किसी भी वेब पेज को attractive या effective बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, images को हम use करते हैं. The image element img allow करता है हमें to add an image in a web page. It is an empty element and hence it does not require any closing tag. ये एक empty tag होता है इसलिए इसमें हमें कोई भी closing tag की requirement नहीं होती. डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो होते हैं IMG टैग के वो इंक्लूड करते हैं SCR, align, alt, border, height and width. Now let's study about more elements and their uses. सबसे पहले आता है align. तो align जो एलिमेंट है इसका यूज होता है, it is used to align an image on the web page. किसी भी वेब पेज के पे इमेजेस को अलाइन करने के लिए हम इस एलिमेंट का यूज करते हैं जैसे लेफ्ट, राइट, टॉप, मिडिल एंड बॉटम. नेक्स्ट हमारे पास आता है alt. तो ये स्पेसिफाई करता है कि विच ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट शुड बी डिस्प्लेड, कि कौन सा ऐसा ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है जो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं. इफ अ सिलेक्टेड इमेज इज नॉट डिस्प्लेड, अगर हमारी सिलेक्टेड इमेज डिस्प्लेड नहीं हुई है तो ऐसी कौन सी ऑल्टरनेट इमेज है जो हम उसके प्लेस पे डिस्प्ले कर सकते हैं. फिर हमारे पास आता है SRC. SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स, यानी कि ये एक सोर्स होती है ऑफ इमेज फाइल एंड इट सेट इज इक्वल टू द URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑफ द इमेज, उसका एड्रेस. फिर हमारे पास आता है एलिमेंट हाइट एंड ये स्पेसिफाई करता है द हाइट ऑफ एन इमेज इन पिक्सल्स. नेक्स्ट इज विड्थ. ये स्पेसिफाई करता है विड्थ ऑफ एन इमेज इन पिक्सल्स. इसका सिंटेक्स क्या होता है, IMG SRC equals to, we have dots then align in quotation brackets equals to dot alt equals to height equals to width. जैसे हमारा प्रोग्राम है
इसके अंदर हमने यूज किया है here IMG SRC is equals to computer JPG and this is our image which is shown in as the output. Now there is a brain booster which says optimize images for the web by choosing the appropriate file format, compressing them and using tools like image sprites to reduce HTTP requests. Optimize images for search engines by using descriptive file names, relevant keywords in alt text and appropriate image dimensions. Respect copyright laws and licensing agreements when using images sourced from the internet and consider using royalty-free Creative Commons licensed images. Now, centering an image in web page. किसी भी web page पे हम image को कैसे center कर सकते हैं? Center alignment of an image on your web page can enhance the appearance of your web page. यानी कि हमारे जो भी इमेज है अगर हम उसको सेंटर अलाइन करते हैं अपने वेब पेज पे तो वो क्या करेगी, अपीयरेंस उसकी बहुत ज्यादा बढ़ा देगी. जैसे हमने यहाँ क्या किया, सेंटर में कर दिया कंप्यूटर सिस्टम वाली इमेज को, तो सेंटर IMG SRC इज इक्वल्स टू computer.jpg, तो हमारी इमेज आ गई हमारे वेब पेज के सेंटर पे. नेक्स्ट इज सेट इमेज विड्थ और हाइट. तो हमने यहाँ क्या किया है, हमने यहाँ पे इंश्योर कर दी कि हमें अपनी इमेज की विड्थ इतनी चाहिए, हाइट इतनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट मिल जाएगा फॉर दैट इमेज. Next is you can set the width and height of an image based on the requirement using width and height attribute. इस attribute को use करके हम अपनी requirement के हिसाब से भी इनको set कर सकते हैं. And you can specify width and height of the image in terms of either pixels या फिर percentage in actual size. Now there is another brain booster which says utilize attributes like title to provide additional information about the link resource when hovering over the link. Then customize link styles using CSS to make them stand out and indicate their interactive nature to users. Aligning image horizontally. अगर हम अपनी इमेज को horizontally align करते हैं, so what? Now you can use the left and right alignment. हम left और right alignment का use कर सकते हैं इन attributes का to control the horizontal positioning of an image on a page. ये जो attributes होते हैं ये allow करते हैं to control how text wraps around the image. कि हमारा जो text है वो हमारी इमेज के अराउंड कैसे रैप करेगा. जैसे इस प्रोग्राम में हमने क्या करा है, हमने लेफ्ट अलाइन कर दिया अपनी इमेज को, तो इमेज कहाँ आएगी, वेब पेज के लेफ्ट साइड में, एंड यहाँ हमारा टेक्स्ट कंटेंट आ जाएगा. नाउ अलाइनिंग इमेज वर्टिकली, तो इट कैन अलाइन आवर टेक्स्ट इन 3 वेज, जैसे टॉप, मिडल या फिर बॉटम. एंड इफ यू हैव रैप्ड टेक्स्ट अराउंड एन इमेज, अगर आपने टेक्स्ट को रैप करा है अपनी इमेज के अराउंड, देन यू कैन नॉट अलाइन द इमेज विद द टेक्स्ट. फिर आप क्या नहीं कर सकते, आप अपने टेक्स्ट को इमेज के साथ अलाइन नहीं कर सकते. नाउ जैसे वी कैन सी इन दिस प्रोग्राम हमने क्या करा है, हमने कंप्यूटर सिस्टम को अलाइन किया है एट द टॉप, तो टॉप पे हमारी फोटो आएगी, देन उसके नीचे हम इसके साथ ही साथ टेक्स्ट को अलाइन नहीं कर सकते. नाउ रैपिंग टेक्स्ट बिटवीन 2 इमेजेस. अगर हमें 2 इमेजेस के बीच में टेक्स्ट को लाना है, देन रैप द टेक्स्ट बिटवीन 2 इमेजेस टू चेंज द लेआउट ऑफ द वेब पेज. वेब पेज के लेआउट के चेंज के लिए हम ऐसा करते हैं. तो इस प्रोग्राम में हमने क्या करा है, इस प्रोग्राम में हमने किया है कंप्यूटर इमेज लेफ्ट अलाइन कर दी, फिर हमने एक लैपटॉप इमेज जेपीजी अलाइन कर दी राइट. ठीक है, तो एक हो गई यहाँ पे लेफ्ट, एक हो गई राइट, और बीच में हमारा आ गया टेक्स्ट. नाउ द टेक्स्ट रैप्ड अराउंड 2 इमेजेस अपीयर्स इन द वेब ब्राउजर. फिर आता है एडिंग बॉर्डर्स टू एन इमेज. हम अपनी इमेज को बॉर्डर कैसे दे सकते हैं, so you can add border to an image to give it added emphasis or to make it look more distinct. ज्यादा डिस्टिंक्ट दिखने के लिए या फिर ज्यादा अच्छा दिखने के लिए हम इसका यूज करते हैं. हम इवन डिफाइन कर सकते हैं थिकनेस ऑफ द बॉर्डर इन पिक्सल्स. जैसे हमने यहाँ क्या करा है, हमने बॉर्डर दे दिया, डिफाइन कर दिया 5 पिक्सल्स, तो इस तरीके का बॉर्डर हमारी इमेज पे आ जाएगा. नाउ एडिंग हॉरिजॉन्टल रूल. हॉरिजॉन्टल रूल कैसे ऐड करते हैं, The HR element is used. HR element होता है horizontal rule जिसको हम यूज करते हैं to display a straight horizontal line या फिर horizontal rule across the web page. जैसे इस प्रोग्राम के अंदर हमने किया है HR का हमने यूज किया है इस तरीके से. एक हमारी जो टेक्स्ट होता है वो पूरा horizontal वे में डिस्प्ले होता है. थिकनेस और विड्थ कैसे चेंज कर सकते हैं हम horizontal रूल में, इट डिफाइंस द थिकनेस एंड लेंथ ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन. एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये जो आती है इसकी लेंथ और थिकनेस हम डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग साइज एंड विड्थ एट्रीब्यूट्स, जो हमें एक बेटर व्यू देते हैं ऑन द वेब पेज. जैसे हमने यहाँ पे किया, साइज दे दिया HR का 10, विड्थ दे दी 50%, तो साइज इतना आ गया और विड्थ कितनी आ गई 50%. नाउ रिमूविंग द शेड ऑफ रूल.
शेड ऑफ रूल को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? बाय डिफॉल्ट जो हॉरिजॉन्टल रूल है दैट कम्स विद शेडिंग, वो शेडिंग के साथ आता है, इन विच इज समटाइम्स नॉट परफेक्टली व्यूएबल, जो कभी कभी परफेक्टली व्यूएबल नहीं होती। सो विद नो शेड ऑप्शन हम क्या कर सकते हैं? थिक लाइन कर सकते हैं विदाउट शेडिंग। तो जैसे इस प्रोग्राम में हमने किया, हमने यहाँ पे डाल दिया, साइज दे दिया HR का 10, विड्थ दे दी 50% एंड नो शेड हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो कोई भी शेडिंग यहाँ पे देखो नहीं आएगी, इट्स जस्ट दैट आ थिक लाइन। चेंजिंग द कलर ऑफ द रूल, रूल का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं? हम कलर चेंज कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल रूल का टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ योर वेब पेज। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया है कलर हैशटैग 000FF, so this is what the color we got. Now links, वेब पेज कैन कंटेन वेरियस लिंक्स, वेब पेज जो होता है वो बहुत तरीके के लिंक्स कंटेन कर सकता है, नोन एज हाइपर लिंक्स, एंड दे टेक्स द विजिटर टू अदर पेजेस टू द सेम साइट, एक साइट पे दूसरे पेजेस पे ले जाने के काम में आता है हाइपर लिंक, या फिर टू स्पेसिफाई पार्ट ऑफ अ सेम पेज का कोई पार्ट स्पेसिफाई करने के लिए भी हम हाइपर लिंक यूज कर सकते हैं, एंड टू अ वेब पेज ऑफ द सेम एक्सटर्नल साइट, सेम ही एक्सटर्नल साइट पे जाने के लिए भी हम उसका यूज करते हैं। हाइपर लिंक्स को हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग टेक्स्ट या फिर इमेजेस अवेलेबल ऑन द वेब पेज। हाइपर लिंक्स आर क्रिएटेड यूजिंग एंकर टैग यानी कि ए। नाउ इसका सिंटेक्स क्या होता है? ए href is equals to page URL, क्लिकेबल टेक्स्ट या फिर इमेज होती है ये। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंक्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दो तरीके के लिंक्स होते हैं। पहले देखते हैं इंटरनल लिंक कौन से होते हैं। इंटरनल लिंक्स to the linking of different sections within the same page, जब सेम वेब पेज के अंदर डिफरेंट सेक्शंस को हम लिंक कर रहे होते हैं तो इट इज नोन एज इंटरनल लिंकिंग। दीज लिंक्स कैन बी ईदर एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ये लिंक्स या तो एब्सोल्यूट होंगे या फिर रिलेटिव होंगे। वेब एड्रेस फॉर द वेब पेज सच एज https www.dreambookpublishing.com इंक्लूड करे जाएगा इन एब्सोल्यूट लिंक्स। रिलेटिव लिंक्स लोकेट होते हैं वेब पेजेस पे विद इन द सेम डायरेक्टरी या फिर subdirectory that can be defined from the current position such as storebooks.html. Anchors वो links होते हैं जो section करते हैं within the same page. These can also be created using anchor tag, but they are referred using the number symbol. लेकिन हम इनको use करते हैं using number symbol. एक्सटर्नल लिंक्स, ऐसे लिंक जो लिंक कर रहे होते हैं दो डिफरेंट वेब पेजेस को, वो एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं। ये जो लिंक्स हैं दे मस्ट ऑलवेज बी एब्सोल्यूट, इन लिंक्स को हमेशा कैसा होना है? दे मस्ट ऑलवेज बी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट लिंक इंक्लूड करता है प्रोटोकॉल सच एज http, डोमेन नेम सच एज www.dreambookpublishing.com एंड अ फाइल नेम। ईच डायरेक्टरी इन एन एब्सोल्यूट लिंक, हर डायरेक्टरी जो होती है एब्सोल्यूट लिंक में वो सेपरेटेड होती है बाय स्लैश सिंबल। Following is an example of creating a link to Dream homepage. जैसे A href हमने ये दे दिया लिंक, click here to visit Dream homepage, हमने लिख दिया यहाँ पे आपको क्लिक करना है अगर आपको विजिट करना है ड्रीम होम पेज। नाउ अंडरस्टैंड इट, ए किस लिए होता है? एंकर के लिए, इट बिगिंस द लिंक टू अनदर पेज। नाउ href stands for hypertext reference, यानी कि दिस इज वेयर द लिंक विल टेक टू यू, ये वो है कि जहां पे ये लिंक आपको लेके जाएगा। Now this whole is the full address of the link. Note that the address is equal to sign. इस एड्रेस के अंदर एक equal to sign in front of it है। Now and is enclosed in inverted commas. Where it reads click here to visit dream homepage is where you write the text. यहाँ पे हम text लिखते हैं that you want to appear on the page. Whatever is written in that space will appear on the page for the viewer to click. तो राइट समथिंग दैट डिनोट्स द लिंक, हमें यहाँ पे कोई ऐसी चीज लिखनी होती है जो हमारे लिंक से डिनोट हो रही होती है एंड उसको पढ़ के हमारा यूजर लिंक पे क्लिक करेगा। स्लैश ए एंड्स द एंटायर लिंक कमांड। नाउ हियर्स व्हाट अपीयर्स ऑन द पेज यूजिंग कमांड अबव। क्लिक हियर टू विजिट द पब्लिकेशन होम पेज। नाउ विदाउट क्लिकिंग सिंपली प्लेस योर माउस पॉइंटर, हमें बिना क्लिक करे अपने माउस पॉइंटर को लेके जाना है ऑन द वर्ड्स। You will see the address of the link, आपको अपने लिंक का एड्रेस मिल जाएगा that you created, come up along the bottom of the browser window. Next is creating text link. You can create text link of another website. हम किसी दूसरी वेबसाइट का भी टेक्स्ट लिंक क्रिएट कर सकते हैं इन योर वेब पेज, एंड जो टेक्स्ट लिंक होगा वो अपीयर होगा इन कलर्ड एंड अंडरलाइन फॉर्म। इट इज अ प्रोग्राम जिसमें हमने क्या किया है, सेंटर में कंप्यूटर सिस्टम की इमेज दे दी,
सेंटर में वो इमेज है, देन कंप्यूटर जेपीजी फॉर्मेट में सेंटर, देन साइज दे दिया 10 विद 50, कलर दे दिया। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स अंडर द इंस्ट्रक्शन, एक हमने यहाँ पे लाइन प्रोवाइड कर दी। नाउ एज यू कैन सी इन द गिवन आउटपुट, जैसे भी हमने प्रोग्राम लिखा था, एक कंप्यूटर सिस्टम हेडिंग आएगी, सेंटर में हमारी इमेज आएगी, एचआर हमने प्रोवाइड कर दिया था विद कलर, देन द डिस्क्रिप्शन एंड हियर क्लिक हियर फॉर हेल्प। तो जब हम अपने पॉइंटर को इस पे लाएंगे तो हमें डायरेक्ट एक लिंक मिल जाएगा जो हमें वहां पे लेके जाएगा। Here is a brain booster which says regularly text links to ensure they are working correctly and update or remove broken links to maintain website integrity. Use charts, graphs, and other visual elements alongside tables to present data in a more engaging and understandable way. Implement features like sorting, filtering, and pagination in tables using JavaScript libraries or frameworks to enhance user interactions. मूविंग फॉरवर्ड टू क्रिएटिंग एन ईमेल लिंक, हम कोई भी ईमेल लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ लिंक जो हमें अलाउ करता है, यानी कि विजिटर्स को टू सेंड you an email message directly. So when the visitor clicks on the email link, जब जो visitor है वो email link पे click करेगा, the default email program will open and display कर देगा वो email address you specified to ensure that जो message है वो reach हुआ है to the correct person. An email link allows users to send queries and feedback that can help you improve your website. As you can see in the following example, यहाँ पे हमने HREF में एक मेल दी, मेल टू अस, एंड यहाँ पे हमने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया फॉर द मेल। जैसे आउटपुट आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगी मेल अस एट और हमारी ईमेल। There is another booster which says you should be cautious when placing a personal email address on a web page. Email addresses on web pages are notorious magnets for unsolicited emails because such addresses can be harvested automatically by spamming tools that crawl the web. So for this reason, you should create a separate email account. इसके लिए हमें अपना एक separate email account बना लेना चाहिए just for your web generated email messages. नाउ जब भी जो विजिटर है वो सिलेक्ट या क्लिक करता है हमारे ईमेल लिंक को, तो जो डिफॉल्ट ईमेल प्रोग्राम है वो यूजर के कंप्यूटर पे ओपन हो जाता है एंड द ईमेल प्रोग्राम ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करेगा ईमेल एड्रेस ही शी स्पेसिफाइड, so to ensure the message reaches the correct person. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टेबल्स। नाउ टेबल्स में द टेबल एलिमेंट इन HTML इसको यूज किया जाता है टू क्रिएट टेबल्स ऑन वेब पेजेस। टेबल्स आर अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड डिस्प्ले डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। द टेबल एलिमेंट इज अ कंटेनर एलिमेंट। टेबल एलिमेंट क्या होता है? कंटेनर एलिमेंट होता है। हम क्रिएट कर सकते हैं टेबल इन HTML, XHTML by using table tag. Inside table element, the table is written out row by row. Now, row एक contain करता है inside tag को which stands for table row and each cell in then written inside the row element using td tag जो stand होता है for table data. Now, जो building blocks होते हैं HTML tables are table, tr, th, td tags. Table is to define table itself. tr is to define table row. th for table header. td for table data या फिर cell contents. Now, in addition to these codes, you can assign captions and column groups. हम also create कर सकते हैं tables within tables called nested tables. एक टेबल के अंदर दूसरे टेबल को क्रिएट करना नेस्टेड टेबल बोला जाता है। सिंपल टेबल स्ट्रक्चर इज शोन बिलो। जैसे टेबल है उसके अंदर टेबल रो दे दिया हमने, कंटेंट टेबल हेडर, कंटेंट टेबल डेटा स्लैश tr, हमने टेबल रो क्लोज कर दी, टेबल को क्लोज कर दिया। नाउ देयर आर सम एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद टेबल टैग, जैसे समरी। तो समरी एलिमेंट डिफाइन करता है टेक्स्ट स्ट्रिंग जो हमें एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता है ऑफ द टेबल। बॉर्डर ये स्पेसिफाई करता है विड्थ ऑफ द बॉर्डर अराउंड द टेबल इन पिक्सेल्स। तो डिफॉल्ट वैल्यू वेरी करती है हर ब्राउजर की अलग अलग। फॉर एग्जांपल टेबल बॉर्डर इज इक्वल्स टू 1। बॉर्डर कलर ये स्पेसिफाई करता है कलर को ऑफ द टेबल बॉर्डर एज RGB नंबर और अ कलर नेम। BG कलर ये स्पेसिफाई करता है कलर ऑफ द टेबल बैकग्राउंड एज द RGB नंबर और अ कॉलम कलर नेम। फिर हमारे पास आता है विड्थ, ये स्पेसिफाई करता है ब्रेथ ऑफ द टेबल इन अ ब्राउजर विंडो। Width attribute can be set to a specific number of pixels or to a percentage of the available screen width. जो percentage value होती है is used to ensure compatibility across the variety to display platforms. जो pixel value होती है उसको हम use करते हैं when the fixed width is required for the content such as images.
नाउ अलाइन क्या करता है, इसको हम यूज करते हैं फॉर अलाइनिंग द कंटेंट इन इंडिविजुअल सेल्स एंड द टेबल इटसेल्फ। टू टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होती है, ये अलाइन करता है हेडर अक्रॉस द विड्थ ऑफ द सेल और टेबल अक्रॉस द विड्थ ऑफ द पेज। अलाइन एट्रीब्यूट कैन बी सेट इक्वल टू लेफ्ट, राइट और सेंटर। वर्टिकल, इस एलिमेंट के अंदर जो कंटेंट है वो टॉप एंड बॉटम ऑफ द सेल में अरेंज किया जाता है। वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ सेल कंटेंट्स is controlled by setting the v-align attribute to top, middle और bottom। vertical alignment जो होता है entire table का होता है, cannot be specify नहीं कर सकते। creating a table, you can create a table to clearly display information on a web page। sometimes we may like to display information in a tabular format। so for example if we like to display a price list, अगर हमें कोई price list display करनी है और सेल ऑर्डर डिस्प्ले करना है किसी भी आइटम का, जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है इसके लिए वो है टू डिस्प्ले इट यूजिंग अ टेबल। हम यूज कर सकते हैं टेबल्स को टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन कॉलम्स लाइक दोज हु फाउंड इन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स। अ टेबल हैज थ्री पार्ट्स। टेबल के तीन पार्ट होते हैं। पहला रो जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ डेटा होती है, हेडर सेल, इट कंटेन्स टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब्स द डेटा इन रो और कॉलम। डेटा सेल्स ये कंटेन करते हैं डेटा या फिर इंफॉर्मेशन वी लाइक टू डिस्प्ले। यू कैन यूज टैब कीज टू सेपरेट द डेटा। हम टैब कीज का यूज कर सकते हैं डेटा को सेपरेट करने के लिए फॉर ईच सेल। एंड द वेब ब्राउजर विल इग्नोर द स्पेसिंग यू ऐड। वेब ब्राउजर क्या करेगा, वो इग्नोर कर देगा उस स्पेसिंग को जो आप उसमें ऐड कर रहे हो। जैसे ही हमारा प्रोग्राम है, हमने इसमें क्या किया, क्रिएट टेबल किया, सेंटर इनवॉइस, आइटम नेम, प्राइस लिस्ट, क्वांटिटी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ऐसे किया हमने। तो हमारा इनवॉइस आ गया लेफ्ट अलाइन, आइटम नेम प्राइस सेंटर में आ गया, लैपटॉप डेस्कटॉप उनका प्राइस, क्वांटिटी। नाउ सेंटरिंग द टेबल, टेबल को हम सेंटर में कैसे ला सकते हैं, तो यू कैन एंटर अलाइन अ टेबल, इंप्रूव द अपीयरेंस ऑफ योर वेब पेज। व्हाट वी विल डू इज हम अलाइन कर देंगे, इनवॉइस को भी सेंटर में कर दिया हमने, क्रिएट कर रहे टेबल को, यहाँ पे हमने डिफरेंट टैग्स यूज करे, प्राइस पर यूनिट, क्वांटिटी, अलाइन सेंटर, सेंटर की हमने उसमें स्पेसिफिकेशंस डाल दी। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा का पूरा टेबल था वो सेंटर में आ गया। जो वेब ब्राउजर है वो टेबल को डिस्प्ले करेगा विच इज सेंटर अलाइन। Now adding borders to table, you can add border to a table to separate each and cells in a table. This is will make the data in table easier to read। जैसे कि हमारा इस बार क्या किया हमने, इसको एक पर्टिकुलर बॉर्डर दे दिया, एक बॉक्स दे दिया जिसमें हमने उसको उसमें टोटल प्राइस दिया, बॉर्डर की हमने विड्थ बता दी इन पिक्सल्स। इस तरीके से हमारा ये शो हो गया। नाउ व्हाट इज स्पैनिंग सेल्स? स्पैनिंग सेल्स क्या होता है, यू कैन कंबाइन टू और मोर सेल्स इन अ रो। आप दो से या दो से ज्यादा सेल्स को कंबाइन कर सकते हो किसी भी रो या कॉलम में टू मेक इट वन लार्ज सेल्स। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कॉल स्पैन, हाउ मेनी अक्रॉस, एंड रो स्पैन जैसे हाउ मेनी डाउन, इंडिकेट करते हैं कि कितने कॉलम्स या फिर रोज है a cell should take up। Pairing cells is mainly used to display little across the top or down side of the table। Spanning cells across columns हमने यहाँ पे यूज किया है कॉल स्पैन, कंप्यूटर स्टोव को हमने यहाँ पे क्या किया है, दो सेल्स को मर्ज करके यहाँ पे इसको एक बड़ा सेल बनाया है। नाउ स्पैनिंग सेल्स अक्रॉस रोज, इसमें हमने कॉलम्स में किया था लाइकवाइज दिस वे। अब हम सेल स्पैनिंग करेंगे इन रोज। तो हमने इस बार क्या किया है, रो स्पैन यूज किया है, उसमें हमने कॉल स्पैन यूज किया था। तो इस बार जो स्पेसिंग आएगी वो कैसे आएगी, रोज में आएगी। नाउ द वेब ब्राउजर स्पेन द सेल्स रोज इन द नंबर ऑफ रोज यू स्पेसिफाइड। नाउ एडिंग कलर टू द टेबल, हम अपने टेबल को कलर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, यू कैन एड कलर टू अ टेबल टू एम्फसाइज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हम अपने टेबल के अंदर कलर डाल सकते हैं किसी भी स्पेशल इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए। यू कैन एड कलर टू अ सेल, a row or entire table according to your need। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कलर प्रोवाइड करा दिया, जैसे बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने यहाँ पे। तो हमारे जो ये वाले सेल्स थे इन सब में एक कलर आ गया इस तरीके से। नोट, इफ यू विश टू अप्लाई कलर टू अ रो, अगर आपको एक रो को कलर देना है, इन द tr टैग आपको टाइप करना होगा bg कलर रिप्लेसिंग विद द कलर योर नेम और योर कलर कोड। द वेब ब्राउजर डिस्प्लेस द सेल, row or entire table in the color you specify। There is a brain booster which says conduct accessibility testing with assistive technologies like screen readers
to ensure tables are navigable and understandable for users with disabilities. Design table headers to be visually distinct from data cells ताकि वो उसके लिए easier बनाए यूजर के लिए to identify and understand the content. Optimize table performance by limiting the number of rows and columns using server-side pagination and minimizing unnecessary data processing. Next is adjusting table size. हम table size को adjust कैसे कर सकते हैं? You can control the exact size of the table using width and height attributes in the table tag. आप specify कर सकते हो table size को pixels में in the browser window when setting with width in pixels. Limit the value to 750 pixels to ensure the table fits on the screen. Now it is your program. इस बार आपने क्या किया है? अपनी width specify करी है, height specify करी है, and it will show up like this in the output. Now moving forward, adjusting cell padding and spacing. तो आप क्या कर सकते हो? आप यूज कर सकते हो padding को to add space between the border के बीच में space लाने के लिए आप padding का यूज कर सकते हो, and the content of the cell के बीच में भी padding and spacing size जो है वो measure होता है in pixels. आप यूज कर सकते हो spacing को to increase the border size or distance between cells. Spacing size is measured in pixels. ये भी pixels में ही measure किया जाता है. So as you can see, हमने यहाँ पे दिया cell padding 10, cell spacing 10. तो इस तरीके से space यहाँ पे हमारे टेबल में create हो जाएगा. Next is a brain booster which says use the loading attribute with the value lazy to defer the loading of off-screen images until they are needed, improving page load time and user experience. Accessibility testing using automated tools or manual inspection to ensure that the images they have descriptive alt attributes and comply with accessibility standards. Now, changing cell alignment. Cell alignment को हम कैसे change कर सकते हैं? The alignment of data within your table cells can be controlled using the align and v-align attributes. जो align attribute होते हैं वो control करते हैं horizontal alignment को, जैसे left, center and right. Default all जो table data होता है हम enter करते हैं in cells is left aligned. जो v-align attribute होता है ये कंट्रोल करता है वर्टिकल एलिमेंट को, दैट मींस टॉप, मिडिल एंड बॉटम. बाय डिफॉल्ट जो टेबल डेटा होता है इन वर्टिकल अलाइंड वो अपीयर करता है इन द मिडिल ऑफ ईच सेल. एंड इन दिस एग्जांपल द कंटेंट ऑफ अ सेल इज सेंटर्ड. इस एग्जांपल में हमने क्या करा है? अलाइन किया है सेंटर में. तो इस तरीके से हमारा जो टेबल है वो सेंटर में अपीयर होगा. लेट्स रिवाइज द चैप्टर. HTML consists of text interspersed with special instructions known as tags. On the web page हम display कर सकते हैं हमारे favorite artworks, drawings, paintings and computer generated art. Also हम create कर सकते हैं हमारे own images that best suits your web pages with the help of image editing program. जो values use होती है horizontal और vertical attribute में वो specify करती है padding in pixels. Any web page can be connected to another by creating a link or hyperlink. External links refer करते हैं to linking between the two different web pages. You can create a link to an image so that आप click कर सकते हो on that image to display the link. You can create a link जो allow करता है visitors को to send you an email message directly. HTML table enable करता है हमें to effectively present large amount of data in rows or columns. The attribute call span and row span indicate करते हैं कि how many columns and row cells should be take up. So students, this was your complete chapter about graphics, tables. I hope it is clear to you. Do revise it once at your own. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care and revise.